کہ نہ دولت نہ عظمت نہ شہرت کی باتیں، نہ دولت نہ عظمت نہ شہرت کی باتیں سنائیے ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار محفل کی چاشنی کو بدلنے کے لیے اور جذبہ جنون کو بدلنے کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آگے سے لے کر پیچھے تک تمام حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، ذوی الاحترام اور باہر سے آئے ہوئے سبھی مہمان، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا۔ پہلے کچھ سننے اور سنانے سے ہیں ضروری، سلام کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھاتے گئے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھاتے گئے، یہ احترام ملا ماں تیری دعاؤں سے۔ سبحان اللہ۔ بہت کوشش کی زمانے نے مجھ کو گرانے کی، بہت کوشش کی زمانے نے مجھ کو گرانے کی، میں حاسدوں کے حسد سے بچا ماں تیری دعاؤں سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور پور شافع یوم نشور، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیجئے۔ پڑھے بآواز و بلند درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کافی دیر تک میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ سامنے کھڑے ہیں، انہیں میری گزارش ہے کہ آپ کھڑے نہ رہیں، اگر آپ کے پاس گاڑیاں ہوں تو چلے جاؤ، کوئی اور آنے والا وہ بیٹھے۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو آگے جگہ ہے، آپ آگے آ کے بیٹھیں اور اس جگہ کو پر کریں۔ اس لیے آج میں کچھ ماں کے حوالے سے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، میرے خیال سے منورانہ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ماں لفظ اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، خدا کی قسم اگر یہ زبان پہ آتا ہے تو اس کی مٹھاس دل تک محسوس کرتی ہے۔ اے ماں لفظ اتنا میٹھا ہے، یقین جانے جن کے سر پہ ماں ہے نا، ابھی وہ سمجھے دنیا میں کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے، اور جن کے سر پہ ماں ہے نا ابھی وہ سمجھے بادشاہ ہے، اور جن کو باپ ملا ہے خدا کی قسم ابھی وہ محتاج نہیں ہے۔ میری بات ذہن میں رکھیں، لیکن میری بات کی قدر صرف وہی لوگ کریں گے جنہوں نے ماں اور باپ کا سایہ کھو دیا ہے۔ ہم نے زیادہ تر وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے ماں چلتی پھرتی ہے، وہ ماں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ماں کو اگر کبھی سمجھنا ہو تو جاؤ کسی 90 سال بوڑھے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا اور اس سے کہنا چچا آج ماں کی یاد آتی ہے، اتنا کہنے کے بعد اس سے جھانک کر دیکھنا اور اس کے آنکھوں کی نمی بتائے گی
आज भी ऐसा लग रहा है कि माँ दरवाजे पे खड़े होकर बुला रही है। सुभान अल्लाह। यार कमर झुक गई है, माँ आज भी याद आती है। बाल सफेद हो गए हैं, माँ आज भी याद आती है। सोच भी नहीं सकते माँ कितनी अजीम दौलत है। कायनात में अगर कोई पावरफुल वो शख्स है तो सज्जिदा आमिना का शहजादा है। अगर सबसे ज्यादा कोई अमीर है तो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। अगर ऐसा कोई शख्स जिनके कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है वो हसनैन का नाना है। जिसको खुदा ने सब कुछ दिया है वो फातिमा जहरा का बाबा है। लेकिन मैं आज तुझे बताऊं, फतह मक्का के बाद कुरान कहता है कि लोग इस्लाम में फौज तक फौज दाखिल होने लगे। जब लोगों की फौजों की फौज इस्लाम में शामिल हुई तो लोग नमाज पढ़ने के लिए मेरे हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में जमा हुए। जब हुजूर तशरीफ लाए तकरीबन 10,000 का मजमा था साहबा इकराम का। जैसे हुजूर ने मस्जिद नबवी में कदम रखा तो 10,000 लोग मेरे हुजूर के लिए खड़े हो गए। जैसे हुजूर ने 10,000 मजमे को देखा तो हुजूर रोने लगे। साहबा इकराम फरमाते हैं, खुद अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर इस दर्द के साथ रोए कि रोने की आवाज हुजूर के मुंह के बजाय सीने से भी आ रही थी। हुजूर इस दर्द के साथ रोए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब लोग चले गए तो हजरत अबू बकर हुजूर के कदमों में बैठे, फरमाने लगे, मेरे आका, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज 10,000 का मजमा था आका, आज खुशियों का दिन था, मेरे हुजूर रो क्यों दिए? हुजूर ने अबू बकर का चेहरा देखा, फरमाने लगे, अबू बकर, आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया था। अल्लाहु अकबर इतना सुना था कि हजरत अबू बकर खुद रोने लगे। फरमाने लगे, मेरे आका, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज 10,000 लोग मेरे लिए खड़े हुए। जब 10,000 लोग खड़े हुए मेरे दिल ने कहा काश मेरी माँ आमिना होती। अल्लाह अकबर, सोचने की बात है प्यारे, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते चलो। हुजूर दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, 6 साल की उम्र शरीफ की थी कि आप माँ के साथ वालिद की कब्र अनवर पर गए। 6 साल में कुछ अमनियान में गुजार के वापस आ रहे थे कि रास्ते में सज्जिदा आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार की शिद्दत बढ़ी, इतनी तबीयत खराब हुई कि आप सवारी पर बैठ ना सकी। जब आप ना बैठने के काबिल रही, कहने लगी काफिले वाले रुको, अब मैं सवारी पर बैठ नहीं सकती। सुने जो माँ को गालियां देते हैं, सुने जो माँ को हिकारत की निगाह से देखते हैं। माँ क्या होती है? हजरत सज्जिदा आमिना सवारी से उतरी है, मेरे नबी की उम्र 6 साल है, हुजूर को सामने बिठाया है। काफिले वालों ने इंतजार किया, तबीयत बिगड़ती गई। काफिले वाले कहते हैं, जरा आमिना पता तो सही, साथ चलना है या ठहरना है? अगर साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शाम करीब आ रही थी। अगर रात हो गई तो जंगल में जानवरों का खतरा है, जान का खतरा हो जाएगा। मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, करीब करीब कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। जब काफिले ने जाने की बात की थी तो मेरे हुजूर के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब काफिले ने छोड़ने की बात की थी तो मेरे हुजूर के कलेजे पे क्या गुजरी होगी? जब काफिले ने कहा था जरा उम्मे अमन इतना पता तो करो, हमें जाने की इजाजत दी जा रही है या ये खुद चलने के लिए तैयार है? उम्मे अमन ने इतना सुना था कि आंख में उम्मे अमन के आंसू आ गए और चेहरा मेरे हुजूर का देखने लग गई। और बेटे ने माँ के चेहरे को देखा, माँ ने बेटे के चेहरे को देख के कहा, बेटे इन्हें जाने की इजाजत दे दो। जब काफिला जा रहा था, क्या मंजर था उस वक्त मकाम का कि कभी हुजूर छुपते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं। काफिला चला गया, माँ की निगाह बेटे के चेहरे अनवर पर थम जाती है। माँ हुआ करती है। आज पढ़ते जाके माँ बाप को भूल जाते हो। इन्हें सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, प्यारे पैसा कमाने जाओ, तुम्हारा हक है, दौलत इकट्ठा करो, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी माँ बाप को फोन पे बात कर लिया करो और उन्हें अपने चेहरे पे दिखा दिया करो। तुम परदेश जाके 6-6 महीने तक माँ बाप को फोन नहीं करते हो। जब माँ बाप इन उलमा से आके शिकायत करते हैं, मौलाना कोई तावीज करके दो, बेटे को 3 महीने हो गए हैं, फोन तक भी नहीं आया है, उसी वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाके दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ बाप को फोन पे बात करने का वक्त नहीं मिलता। मैं कितने जवानों की कहानी सुनाऊं तुम्हें, हमने माँ बाप को ऐसे तड़पते देखा है, कहते हैं तबीयत खराब है, बेटा है तो आने का नाम नहीं लेता है। बाप फोन करके बेटे को कहता है, बेटे जिंदगी
जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं और बाप बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 50,000 खाते में लगा दिया है, मैंने 20,000 खाते में लगा दिया है, मैंने 10,000 खाते में लगा दिया है, और तुझे शर्म नहीं आई? तेरा बाप कहता है पैसों के लिए बीमार हुआ है, तेरी दौलत के लिए क्या जिंदा है? जैसे तुझे खबर मिली थी खुदा की कसम कि बाप की तबीयत खराब है तो 50,000 खाते में न लगाता, 10,000 में टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठ जाता और उनके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कह रहा हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए और बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए। उसके बाद नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शहजादे मुफ्ती इथर नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब नहीमी नारे तकबीर नारे रिसालत। आगे तशरीफ लेके आए और दिल जमाई के साथ बैठे रहे। तो अपने बाप के सीने से सीना लगा, खुदा की कसम जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा नहीं दे सकती थी, जो तेरा चेहरा खुश कर सकता था, आईसीयू में जाने के बाद वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो तू आके कदमों में बैठता और उनके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कह रहा हूँ 20,000 की दवा एक तरफ रखी जाए, जमाने की दवा एक तरफ रखी जाए, वो बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए। उसके बाद तो अपने बाप के सीने से सीना लगा, खुदा की कसम जो सुकून 20,000 की दवा नहीं दे सकती थी, वो सुकून तेरा सीना तेरे बाप को एक मिनट में दे सकता है। आज परदेश जाके माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे माँ बाप ने कैसे पाला है, किस तरह पाला है। हाँ दौलत कमाओ, जरूरत है तुम्हारी, लेकिन नसीब वाले हैं बेटे जिनकी दौलत खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू इस अशार के साथ खत्म करने जा रहा हूँ। हक माँ से ज्यादा नहीं है दुनिया में किसी का, जो काबिल इज्जत है वो रुतबा है इसी का। सींचा इसी माँ ने तुम्हें खून जिगर से परवान चढ़े, इसी की दुआओं के असर से अरमान से ख्वाहिश तमन्नाओं से पाला, अरमान से ख्वाहिश तमन्नाओं से पाला। है कौन भला माँ की तरह चाहने वाला, माँ है अगर राजी तो खुदा शाद रहेगा, लो इसकी दुआएं तो घर आबाद रहेगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी इस दुआ के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ कि आप सभी को अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखते देखते दीवाना निकल गया और एक पल में इंडिया से शहर मदीना निकल गया। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी इनके दरिया से हम प्यासे निकले। ये जनाब सैयद अहमद शाह ने सैयद जमान अली शाह सैयद पीर जमान अली शाह जो बेहतरीन तरीके से हमें और आपको नवाज रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे और बेहतरीन खिताब आप भी सुन रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तड़प के मजल के सुभान अल्लाह कहते रहें, क्योंकि जितनी बार भी आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतना आपको मजा आएगा सुनने में और उतना ही सुनाने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि अभी भी अगर कोई बाहर है तो फिर वो महरूम रह जाएगा। करते हो जब माँ बाप इन उलमा से आके शिकायत करते हैं, मौलाना कोई तावीज करके दो, बेटे को 3 महीने हो गए हैं खून तक भी नहीं आया है, उसी वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाके दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ बाप को फोन पे बात करने का वक्त नहीं मिलता। मैं कितने जवानों की कहानी सुनाऊं तुम्हें, हमने माँ बाप को ऐसे तड़पते देखा है, कहते तबीयत